Hello everyone, welcome to my channel. And I'm really excited to be here today because we are about to start a new subject, a subject together. And I have to admit, time. It's my first time creating a teaching video like this. So bear with me as we explore this topic together, okay? I might stumble or make few mistakes along the way. Okay. So, but that's part of learning process, as you know. Okay. I believe that we can learn and grow together, and I'm grateful to have you here with me. So, without further ado, let's dive right in. So, I have taken this subject, information technology, here and we will thoroughly discuss this subject here and how this subject is important in our daily life. Okay, and if you are studying in class ninth or class 10th or any competitive exams where computer science or information technology is tested, so you can also join this session. You can also uh, watch these videos, okay? And I will completely uh, make videos on this subject, okay? So let's see which we will cover in this subject. So this is the content. This is the content here. Okay, content. And here we have unit first, introduction to IT or ITES industries. And the second unit will be on data entry and keyboarding skills. And third unit will be on digital documentation. And fourth one is electronic spreadsheet. And fifth one is digital presentation. Okay. So let me tell you, I have to make this video bilingually because this is very important because there are so many students who are not able to understand uh, you know English very well because in this topic there would be some difficult words which I will going to use here. So I have to use sometimes Hindi as well. Okay, so let's get started. Okay, introduction. First of all, देखिए, information and communication technology ICT is its short form. Okay, has become one of the basic requirements of the modern life. We use different devices to perform the task. देखिए, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेली लाइफ में। ठीक है, आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मशीन्स हो सकती है, डिवाइसेस हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो कि आईसीटी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि आईटी के ऊपर डिपेंड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, वेयर वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट आईटी। मीन्स अगर आप सोचिए, अगर आईटी ना हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो, तो हम किस तरह से इस वर्ल्ड को देख सकते हैं। आप मानिए कि जितने भी डिजिटल फॉर्म में आपके आसपास जो भी चीजें हैं, एक बार सोचिए कि वो चीजें ना हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी। आप एक दिन के लिए मोबाइल फोन को साइड में रख दीजिए या किसी से
कम्युनिकेशन ना कीजिए बिल्कुल भी। या जितने भी आपके आसपास जितनी भी चीजें डिजिटल फॉर्म में हैं, उनके साथ आप बिल्कुल उसका यूज करना जरा छोड़ दीजिए। आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। The information technology enabled services has provided significant contribution to economy। अब फिर से ये ITES क्या होता है? ITS का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जिनका क्लोज रिलेशन है, ठीक है, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो हमने इसमें आईसीटी और हम आईटी और आईटीईएस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं। अब इसमें समझते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसको हम एक फ्लो चार्ट से पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो क्या है? डेटा होता है जो भी कुछ आप इनपुट के फॉर्म में देते हो, इनपुट देते हो, जिस भी चीज का जो आप इनपुट दे रहे हो, वो क्या है? डेटा है। और फिर वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। जब हमें उसका क्या मिलेगा? आउटपुट। तो फिर वो क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन। यानी कि प्रोसेस्ड डेटा ही आपका क्या है? इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए, अब यहाँ देखो, द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा। डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल्स विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। अब समझिए, सपोज आपको चाय बनानी है, ठीक है, आपको चाय बनानी है। तो चाय के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पानी डालोगे। पहले रॉ मटेरियल देखो, आपका क्या होगा? वाटर होगा, और आपके यहाँ पे चाय पत्ती होगी, ठीक है, और चीनी हो गई, ठीक है, ये आपका क्या है? और दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये एक हिसाब से आपको कंप्यूटर भाषा में कहें तो ये क्या है? डेटा है एक टाइप का। अब इस रॉ मटेरियल को जब आप इसमें डाल दोगे पतीले में, चाय बनाने के लिए, ठीक है, टी बनाने के लिए आपने इसको डाल दिया। अब क्या होगा? इसमें जब ये उबलेगा, ये बनने का जो प्रोसेस है, आपका प्रोसेस हो रहा है अभी, ठीक है। जब चाय बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन आपकी बन चुकी है। इसी तरह से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, जैसे आपने किसी का नाम टाइप करा कंप्यूटर में, तो वो नाम क्या होगा? प्रोसेस होगा, और बाद में वो कंप्यूटर में फीड हो गया, यानी कि स्टोर हो गया। तो उसके बाद वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यही कह रहा, पहले जो रॉ मटेरियल है वो आपका डेटा है, जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है तो फिर क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब हमारे कोई भी, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे किसी का रोल नंबर हो या स्टूडेंट आईडी हो, ठीक है, या आपका नाम हो, आपका जेंडर है, एज है, वो क्या है? फर्स्टली वो क्या था? ये पहले वो क्या था? डेटा था, ठीक है। अब जब वो कलेक्ट हो गया, ठीक है, प्रोसीड हो गया, तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। वो आपके सिस्टम में आ गए। अब उसको आपने क्रिएट करा, जब आपने उसको टाइप करके किया तो क्रिएट करा, फिर वो स्टोर करना है उसको, और फिर उस स्टोर करे हुए डेटा को उसको मैनेज करना है, ठीक है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन भेजना, ये आईटी हो गया। IT includes all types of technology which we use to deal with information। देखो, सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो किसके साथ जो डील करेगी? इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ बातचीत नहीं है, किसी पे फोन पे बात कर ली वही इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि आपने किसी से फोन पे बात कर ली कि वही इंफॉर्मेशन है, नहीं, वही इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कॉल ही करना नहीं है, या सिर्फ मैसेज ही करना इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन हर एक वो डेटा है जो आपका डिजिटल फॉर्म में वर्क कर रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है? इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सच एज कंप्यूटर और एनी डिजिटल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। समझ रहे हो? जितने भी डिजिटल डिवाइस है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपकी कोई भी डिवाइस हो,
ठीक है, चाहे वो मेडिकल के लिए आपका मेडिकल साइंस में कोई डिवाइस यूज हो रही है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे की सारी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। फिर ये है आईटी प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। अब कुछ तरह के यहाँ के जो है ये फायदा देती है, जैसे ये आपको बहुत सारे कस्टमर तक पहुंचाती है, जब तक रीच आपकी ज्यादा हो जाती है, जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा। डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर। अब देखिए बिजनेस में क्या होता है, किसी को किसी चीज की जरूरत हो जाती है, किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से आप एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो आपका क्या होगा, वो बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो उससे क्या करता है, वो डेवलप करता है, जो कि आईटी का पार्ट है, यूजर से। या फिर क्या करता है, रिड्यूस कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे, आप बताइए, अगर आपको कोई फाइल, अगर आप हार्ड कॉपी में यूज करोगे उसे, तो कितना आपका पैसा खर्च होगा, पेपर पे खर्च होगा, इंक खर्च होगी, बहुत तरीके का, ठीक है। अब बट ये क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं, उतनी पेपरलेस हो जाओगे आप कंप्लीटली, और इसमें आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो आप सोचिए बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कितना बेनिफिशियल है। और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता जब तक कि उसके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। तो वो काफी सटीकता और एफिशिएंसी, स्पीड, ये सब आपको मिलेगी, ठीक है। और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो इसमें बढ़ेगा ही, और क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, और एरर्स कम होगी, और लॉस भी आपका कम होगा। ये कुछ पिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गया, जो डॉक्टर में जो यूज कर रहे हैं लेबोरेटरीज में, उसको आप देख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा वो सिस्टम आपका कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। इसमें आईटी का यूज है, और इसमें आपके जितने भी आप जो है, कोई केमिकल बन रहा है, कोई आपका एंटीवायरस बन रहा है, उसके लिए आप देख रहे हो जो भी आपका टेस्टिंग होती है, वो चाहे किसी भी किसी भी साइंस में हो, ठीक है, मेडिकल साइंस में हो या आपके फिजिक्स साइंस में हो, यहाँ पे वो देख रहे हो आप। यहाँ पे आप देख रहे हो किसी तरह का डिवाइस बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज है, इंफॉर्मेशंस को शेयर स्टोर करने के लिए आपका आईटी का यूज है, बिजनेस एनालिसिस में आपका आईटी का यूज है, यहाँ आपका इंजीनियरिंग में आपका आईटी का यूज है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आईटी का यूज है, और यहाँ पे डिवाइस मेकिंग के लिए आपका आईटी का यूज देख रहे हैं। तो हम आईटी का यूज बहुत जगह यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिए। Information technology that enables the range of services to business and organizations to enhancing the quality of services is called information technology enabled services। यानी कि आईटी का यूज करके अगर आप कुछ बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सर्विसेज मिलती है आईटी का यूज करके, जिससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसकी सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव आएगी, ठीक है। तो वो सारी सर्विसेज क्या कहलाएगी, आईटीईएस कहलाएगी। आईटीएस इज ऑल्सो कॉल्ड वेब इनेबल्ड सर्विसेज। वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी यूज किया कहलाता है, रिमोट सर्विसेज भी, क्योंकि आप इसमें फिजिकली आप दूसरे पर्सन से मिलते नहीं हो। आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज्ड या आप आईटी का यूज करके, ठीक है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी तरह से हो सकता है। यूज टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। बिल्कुल एफिशिएंसी तो आएगी, क्योंकि आप आईटी का यूज कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी पे ही सारा वर्क हो रहा है, तो एफिशिएंसी आना बहुत जरूरी, जाहिर सी बात है। और स्पीड भी अच्छी आएगी, ठीक है, टाइम डिले कम होगा। ये तो था आपका एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और थर्ड है
इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक डिफेंस। डिफेंस में आपका आईटी का यूज है, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, टेलीविजन में देख लो, स्कूल एंड न्यूज सब। द यूज ऑफ आईटी इन आवर डेली लाइफ इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, वॉचिंग मूवीज या प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग यूटिलिटी बिल्स और बुकिंग टिकट्स टू ट्रैवल एंड बैंक ऑपरेशंस। सारा का सारा आईटी के ही अंदर है। जो आप इतनी तरह की जो आप सर्विसेज ले रहे हो आईटी के अंदर, जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो कहलाती है आईटीईएस, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो आईटी का यूज कर रही है। ई इनेबल्ड सर्विसेज, आई मीन यही आईटीईएस रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या होगा, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या होगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज, देखो ये भी एक क्या है, आईटीईएस के ही पार्ट है। और ये क्या करता है, और ई कॉमर्स सोल्यूशन देता है, बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू ही आप ई कॉमर्स को आप जो है, ई कॉमर्स रन होता है। द सर्विसेज में इंक्लूड मेडिकल रिपोर्ट्स, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स आप बनवाते हो तो उसमें भी आप आईटीएस का यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आईटीएस का यूज कर रहे हैं। कोई भी ऐसे सर्विसेज लेता है, ठीक है, आपसे कोई आईटीएस को यूज कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, जो आपकी कस्टमर सर्विसेज होती है, हेल्प डेस्क जो होते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, ये सारी आईटीएस का पार्ट है, राइट। अब नेक्स्ट है बीपीओ सर्विसेज, इसको थोड़ा जान लेते हैं। बीपीओ सर्विसेज में क्या मिलेगा होगा हमारा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से आप समझ ही रहे होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से हायर करेंगे। जैसे देखो, सर्विसेज मींस गेटिंग परफॉर्म्ड बिजनेस ऑपरेशंस और सर्विस थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हमें अपना काम पूरा करने के लिए किसी एक थर्ड कंपनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, वो बीपीओ कहलाता है। तो BPO is the part of IT services as IT plays a vital role in optimizing the business performance। ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आईटी का बहुत बड़ा रोल है। द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली रिक्वायर्ड टू गेट वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विस आउटसोर्स्ड इन इंडिया। अब जो बीपीओ है, देखो इसका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसके थ्रू इंडिया में क्या हो रही है, आउटसोर्स सर्विसेज को लिया जा रहा है। इंडिया सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर फॉलोज, देखो देखो अब सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलोज। देखो, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस जो सर्विसेज प्राप्त की जाती है वो भी बीपीओ का पार्ट है, या टैक्सेशन है। माना आपकी एक कंपनी है, आपको बड़े मात्रा में आपको क्या करना है, आप जैसे आपने कोई बड़ी कंपनी खोल ली या कोई इंश्योरेंस कंपनी बना दी। अब इसको लिए हो सकता है आपको सर्विसेज लेने की जरूरत पड़े, ठीक है, एक्स्ट्रा आउटर साइड से किसी बड़ी कंपनी से हेल्प करने की, जैसे आपने ई पब्लिशिंग और वेब प्रमोशंस होते हैं, आप कोई वेब प्रमोशन करवा रहे हैं तो आपको दूसरी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। या ई पब्लिशिंग करवा रहे हो, आप खुद कोई पब्लिक कोई बुक या कोई राइटिंग्स आपकी क्या कर रहे हो, आप आपको पब्लिश करनी है, तो आप क्या करते हो, बीपीओ यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पब्लिशिंग करवाती है, कंटेंट राइटिंग का काम करवाते हैं, दूसरे आपको कंटेंट राइटिंग का काम करके देंगे और आपको उनको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन ही, ठीक है। और डिजाइन सर्विसेज है,
ठीक है, डिजाइन बनवा देते हैं। और फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज हो गई, और लीगल सर्विसेज एंड मल्टीमीडिया हो गया, और हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई। आप बाहर से हेल्थ केयर सर्विसेज ले रहे हो, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या हो गया, बीपीओ की वो कौन सा पार्ट हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज। और टेक्निकल सपोर्ट्स है, माना आपकी कंपनी है, आपको टेक्निकल सपोर्ट देना अपने कस्टमर्स को, आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है, तो आप बाहर से आउटसोर्स करेंगे किसी दूसरी कंपनी को, जो आपको ये काम करके दे करेंगे, और आपको उनको पेमेंट करनी होगी। फिर क्या होगा, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज। अब कस्टमर जो है, कस्टमर से आपको इंटरेक्शन करवाना है। सेम चीज कि आपसे खुद से किसी कंपनी से नहीं हो पाता है, या उसके पास उस तरह के टूल्स या उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करती है, बीपीओ सर्विसेज को लेती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।